Hello my dear friends, कैसे हैं आप लोग? Hope you all guys are fit and fine. So dear friends, हम लोग environment ecology के previous year series कर रहे थे. UPSC CSE के जो previous year questions आए हुए हैं, with the more focus on the additional information expected question. Myself Ajit Tiwari. So guys, आइए देखते हैं ये मेरे courses available है और आप www.ajitlive.in पे जाके डिटेल्स ले सकते हो. So for personal mentorship, my team is always available for you guys. Are you ready for the awesome session? क्या आप ready हो? Give me a big thumbs up and let me know you guys are ready. So have a look on the screen. Question number 1. Scientific view is that the increase in global temperature should not exceed 2 degrees Celsius above pre-industrial level. If the global temperature increases beyond 3 degrees Celsius above the pre-industrial level, what can be its possible impact or impacts on the world? बहुत ही पहला क्वेश्चन है, 2014 में आपसे पूछा गया. Go through the statements. आप स्टेटमेंट्स देखिए. So terrestrial biosphere tends towards a net carbon source. Widespread coral mortality will occur. All the global wetlands will permanently disappear. क्या ये possible है क्या? Permanent disappear होना. Cultivation of cereals will not be possible anywhere in the world. Always guys, आप इतने smart हो, such type of extreme statements are not possible. है ना? इतनी smartness तो आपके पास है कि इतनी extreme कि सारी wetlands globally. Wetland is a broad term, includes rivers, floodplains, corals, mangroves, estuaries. तो ये सब swamps, marshes, bogs, paddy crops, ये permanent disappear तो नहीं होगा. If 3 is incorrect, theory of elimination, C में 3 है, D में 3 है, cut. Cultivation of cereals will not be possible anywhere in the world. Common sense question. If there is increase in temperature, what will happen? So northern part of the globe towards southern part of the globe, there will be tendency to shift. That means temperate regions में थोड़ी productivity yield बढ़ेगी, tropical में land use change होगा. So anywhere in the world not possible का statement गलत है. 4 is not correct. 3 is not correct. अब आते हैं widespread coral mortality मिलाकर, but obvious corals are stenothermal. इनकी टेम्परेचर टॉलरेंस की वैल्यू कम है. They can not tolerate high fluctuation in temperature. Fine. So statement 2 is correct. Terrestrial biosphere tends towards a net carbon source. है ना? तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. आइए इस बात को और समझते हैं. So B is the right answer. 1 and 2. So dear friends, have a look on screen. ध्यान से आइए. With more focus on expected question. आइए expected questions पे ज्यादा फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं. See, हीट बजट में जब इनपुट और आउटपुट में एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स का वेरिएशन, फ्रोजन सरफेस का चेंज होना, दिस विल लीड टू चेंज इन द हीट बजट. ज्योग्राफी में पढ़ाया आपको. इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस बियॉन्ड 3 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल. क्या होगा भाई? मेल्टिंग ऑफ आइस. तो जो जिस आइस में, जिस फ्रोजन सरफेसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 कैप्चर है, ट्रैप्ड है, melting of ice, what will happen? Emission of carbon that is trapped within it. So see, it will behave as a source. Melting of ice and emission of carbon trapped beneath them will make a large carbon source instead of carbon sink. So statement 1 is correct. ध्यान सुनिएगा.
जितने ग्रीन प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, जो CO2 को ग्लूकोज में रिड्यूस करेंगी, वो कार्बन सिंक की तरह बिहेव करेंगी। ग्लोबल वार्मिंग हैज अफेक्टेड द कोरल रीफ्स दैट कैन लीड टू लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइव्स। भाई, कोरल्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, नेटिव जोन ऑफ मरीन इकोसिस्टम, याद है, मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन ऑफ मरीन इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट रिच, है ना, एल्गल बेड्स, कोरल रीफ्स। अब क्या हो रहा है, कोरल की लॉस होगी तो फ्लोरल और फॉनल बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर हैज मेड द fragility of coral reefs even worse. Why? Because they are, अभी बताया आपको, स्टीनोथर्मल। ध्यान सुनिएगा, अगर एक तरफ कोरल स्टीनोथर्मल है तो हम याद रखेंगे मैंग्रोव्स आर यूरिथर्मल। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, तो बट ऑब्वियस कोरल्स के बारे में हम दो चीज याद रखेंगे, दे कैन नॉट टॉलरेट फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, दे कैन नॉट टॉलरेट फ्लक्चुएशन इन सैलिनिटी। ये स्टीनो हेलाइन भी है, मतलब उनकी इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम है। द वैल्यू ऑफ इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड इज लेस, उनकी रेंज ऑफ टॉलरेंस इज लेस when we are having comparison with that of the mangroves। आगे और बात करेंगे। So both aquatic and terrestrial ecosystem will be affected. Rising temperature and acidity within our ocean are contributing to extreme coral bleaching। हमने ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास के रीजन में, क्वींसलैंड के ऑफशोर में ऐसा सुना है, याद आ रहा है, wetlands are drying up and shrinking around the world, but they are not destroyed permanently, they are shrinking। देखिए, आप एक तुलना करिए, इवन दो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा, लेकिन आप देखिए रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट मंथ में कितने रैमसर साइट्स, वेटलैंड्स आइडेंटिफाइड फॉर कंजर्वेशन इंडिया में तेजी से बढ़े हैं। Right now, we are having 75 Ramsar sites. So, Indo-Pacific, Caribbean, South Atlantic, हर जगह मैसिव कोरल ब्लीचिंग, जूजेंथली की डेप्थ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या होगा, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप विल फेस शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, wheat cultivation will shift northwards, productivity will also affected। तो ये परमानेंट लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं, कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। सो स्टेटमेंट 4 इज नॉट करेक्ट। देयर आर ड्राउट्स एट सम प्लेस, फ्लड एट सम प्लेस, बट ऑब्वियस climatic imbalance result of global warming। Global warming leads to change in pattern of heat and humidity। पूरा पूरा आप पैटर्न को चेंज ऑब्जर्व कर लो। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements are correct about the deposition of methane hydrate? Fine. Large deposits of methane hydrate are found in Arctic tundra and under the sea floor। अच्छा, methane in the atmosphere oxidizes to carbon dioxide after a decade or two। ये आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। क्लियर गाइस? देखिए आप,
सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। जितनी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो मीथेन मीथेन हाइड्रेट्स सी मीथेन हाइड्रेट्स एग्जिस्ट अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक। सो जो टुंड्रा रीजन में, जो आर्कटिक रीजन में सी फ्लोर में मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट्स हैं, दे विल रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। वंस इट रीचेस एटमॉस्फेयर, मीथेन गॉट ऑक्सीडाइज्ड, और ये ऑक्सीडाइज होगा और CH4 का सी ऑक्सीडाइज होकर CO2 के फॉर्म में रिलीज होगा आफ्टर अ डिकेड और टू। सो डिफरेंस ऑल स्टेटमेंट्स 1 2 3 करेक्ट। ये देखिए आप, मीथेन हाइड्रेट्स एग्जिस्ट अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। When brought to Earth's surface, 1 cubic meter of methane hydrate releases 164 cubic meter of methane, OMG। देख पा रहे हो आप। So low temperature, high pressure, land deposits below Arctic permafrost। ठीक। Trapped methane, ड्रिलिंग रिग यहां से दिख रहा है आपको, गैस सीप्स फ्रॉम द बिलो, बहुत प्यारा डायग्राम है। Hydrates mound on the seafloor from where it escapes. Ocean deposits embedded in sediments on the continental margin at depth of 500 or more. See, all these are your additional information for your expected question। ध्यान सुनेंगे हम, मैं ABC करके तेजी से आगे बढ़ सकता था लेकिन नहीं किया, क्योंकि फोकस इज मोर एंड मोर ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। मीथेन हाइड्रेट क्या है? इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट कंसिस्ट ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल surrounded by a cage of interlocking water molecule, methane molecule. Lattice of ice traps the methane interlocking water molecule. Methane hydrate is an ice that only occurs naturally in subsurface deposits where temperature and pressure conditions are favorable for its formation। यहां से क्वेश्चन बनेगा कैसा टेम्परेचर और कैसा प्रेशर। लो टेम्परेचर ऊपर की स्ट्रेटा का, हाई प्रेशर अभी हमने प्रीवियस इमेज में इसे ऑब्जर्व किया। सी हाई प्रेशर। ठीक। At global warming, as global warming leads to rise in temperature, क्या होगी? This will trigger release of methane gas from these deposits। अगर हम स्टेटमेंट 2 पे आए, so statement 2 is also correct। Enormous amount of methane hydrates have been found beneath Arctic permafrost, tundra region, beneath Antarctic ice, and in sedimentary deposits along कॉन्टिनेंटल मार्जिन वर्ल्ड वाइड। गाइस, कल मैंने इसी चैनल पे शॉर्ट्स डाला है, डूम्सडे ग्लेशियर, थवाइट्स ग्लेशियर, वेस्टर्न अंटार्कटिका इज मेल्टिंग। जितने आपके कम शॉर्ट इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चंस हैं उनको मैंने YouTube शॉर्ट्स के फॉर्म में बना के इस चैनल पे अपलोड किया है। सो प्लीज बी रेगुलर एंड गो थ्रू ऑल सॉर्ट्स, going to be highly beneficial to you guys। ठीक। Statement 3 is also correct। When methane is anthropogenically emitted, human के impact के कारण it is oxidized in the atmosphere a decade or later। एक बार ऑक्साइड होगा, कार्बन इन ईच मीथेन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू CO2, अभी आपको बताया, which stay in the atmosphere। So CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक CO2 अगर ग्लोबल वार्मिंग 1 यूनिट कर रहा है तो एक मीथेन इसकी तुलना में 25 to 30 टाइम्स ग्लोबल वार्मिंग इंपार्ट करेगा, क्योंकि उसकी लॉन्ग वेव्स को ट्रैप करने की क्षमता, टेंडेंसी ज्यादा है। Come on the next question, very beautiful one।
Agricultural soils releases nitrogen oxides into the environment. Cattle releases ammonia into the environment. Poultry industry releases reactive nitrogen compounds into the environment. अब आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गिवन above is or are correct. Guys, statement 1, 2, and 3. All the three statements are correct. So right answer is D. 1, 2, and 3. आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ देखते हैं कि ये सही कैसे हैं, है ना? Have a look. Agriculture remains the largest contributor to nitrogen emission. अच्छा, the non-agriculture emission of nitrogen oxides and nitrous oxides are growing rapidly. ध्यान सुनना. सीवेज, आज आपने देखा नमामि गंगे मिशन की रिसेंट एडिशन इंफॉर्मेशन, and because of sewage, a big release of sewage in the Holy Ganga is a big concern, and fossil fuel burning for power, for transport and industry leading the trend. But obvious that means, आइए समराइज करते हैं. अगर एक तरफ एग्रीकल्चर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो नॉन एग्रीकल्चर में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का बढ़ता हुआ एमिशन थ्रू सीवेज, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री, जितना कोल पेट्रोलियम का कंबस्शन. ठीक, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. Agricultural soil contributes over 70% of nitrogen into emission from India in 2010, followed by wastewater and residential and commercial activities. एक info है आपके लिए. The statement 2 is correct. Cattle account for 80% of ammonia production, though their annual growth rate is 1%. भाई एनिमल हस्बेंड्री का ध्यान सुनेगा. योर एडिशनल इंफॉर्मेशन, एनिमल हस्बेंड्री इज एडिशनल सोर्स फॉर मीथेन एज वेल. इंडिया इज ग्लोबली द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ammonia emission, nearly double that of NOx emission. Statement 3 is also correct. Poultry industry, on the other hand, with annual growth rate of 6% recorded and excretion of reactive nitrogen compound. ठीक है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है. All the three statements are correct. Guys, बहुत जल्दी मैं important topics of environment geography का भी सीरीज लेकर आ रहा हूं. Which one of the following statement best describes the term social cost of carbon? Social cost of carbon. बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं. ए, long term damage done by a ton of CO2 emission in a given year. B, requirement of fossil fuels for a country to provide goods and services to its citizens based on burning of those fuels. C, efforts put in by a climate refugee to adapt to live in a new place. Contribution of an individual person to carbon footprint on the planet Earth. Yeah, friends, right answer is A. A is the right answer. आइए देखते हैं. So option A is correct. The social cost of carbon is a measure of economic harm from those impacts expressed as dollar value of the total damages from emitting, yes, that's one, 1 ton of CO2 in the atmosphere. Take carbon dioxide emissions are costing the Indian economy up to $210 billion every year. Likely to suffer highest economic damage
from climate change after US. देख रहा, the country level social cost of carbon for India alone is estimated to about 86, देख रहा, $86 per ton of CO2. My God. For US, it is $50 billion per ton. This means that nearly 5 billion metric tons of CO2 the US emit each year is costing the US economy about $250 billion. वैल्यू पे नहीं जाएंगे आप समझेंगे। अगर आप ले रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज का आपके जेब पे असर नहीं है तो आप समझ सकते हो। आप इसे लो लेवल पे समझ लो भाई। क्लाइमेट मॉडरेट है, आपके एसी का टेम्परेचर नॉर्मल है। क्लाइमेट एक्सट्रीम में आप एसी को चिलिंग कर रहे हो, है ना, बिजली का बिल, कार्बन एमिशन, सब कुछ बढ़ा रहे हो, ठीक है। टेम्परेचर हाई है, इरिगेशन में वाटर की इस्तेमाल ज्यादा, पंपिंग सेट्स में एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा, सब कुछ लिंक्ड है। सो चलिए फिलहाल come on the next question. Which of the following phenomenon takes place when hot water is dumped into an aquatic ecosystem? अगर हम गर्म पानी लेक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में रिलीज करें तो क्या होगा? तो what will happen? That means we are promoting thermal pollution. हम यहां पे थर्मल पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। हम यहां पे थर्मल पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ नेचुरल वाटर बॉडी को क्या हम डंप कर रहे हैं। बट ऑब्वियस ग्रीन एलगी की डेथ होगी और उनके कॉस्ट पे साइनोबैक्टीरिया ये सर्वाइव करेंगे। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। लेकिन द सॉल्युबिलिटी ऑफ DO इन वाटर विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, ये घटेगा। स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। सो A1 only is the right answer. आइए इस पे और एडिशनल कंटेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। थर्मल पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सडन इंक्रीज और वेरी इंपॉर्टेंट डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर। पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाए सडन, डिक्रीज हो जाए सडन, तो दोनों केस में इस पे ध्यान देना। This normally occurs when a plant or a facility, say thermal power plant, nuclear power plant, takes in water from natural resource and puts it back with altered temperature. भाई कूलिंग के लिए कूलर के रूप में आपने वाटर को यूज किया और इस हॉट वाटर को उस लेक इकोसिस्टम, उस पॉन्ड, उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में रिलीज किया, सडन टेम्परेचर आपने राइज कर दिया। ठीक, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। विद थर्मल पॉल्यूशन अब उसका इक्वेटिक इकोसिस्टम के कंपोनेंट चेंज होंगे। ग्रीन एल्गीज, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवाल से रिप्लेस्ड होंगे। ठीक, उनकी टॉलरेंस ज्यादा है। स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। जो चेंज इन टेम्परेचर इंपैक्ट्स organism by decreasing the level of dissolved oxygen in the water body. कोल्ड वाटर की ऑक्सीजन होल्डिंग टेंडेंसी हाई होगी। ध्यान सुनना, वेरी वेरी कंसेप्चुअल। जितनी वार्म वाटर होगी एक तरफ उसकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम, दूसरी तरफ वार्म वाटर पे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा। So they will what will happen? So they will consume more and more oxygen. अब क्या हो गया? अवेलेबल ऑक्सीजन घट गया। क्या हो गया? DO की वैल्यू, डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू घट गई। तो इफेक्ट क्या हुआ? फाइनली अब डिक्रीज इन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब याद करिए, जब हमने यूट्रोफिकेशन पढ़ा था और हमने पढ़ा रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, सीवेजेस फ्रॉम एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज,
है ना। फिर न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, एल्गल बूम, ग्रीन स्कम, हार्मफुल एल्गल ब्लूम, क्लॉगिंग द एक्सपोज सरफेस। याद आ रहा, सारे कंसेप्ट हमने समझे हुए। The discharge of warm water in a natural water body increases metabolic rate of aquatic animals and results in consumption of more food in shorter time. Increased metabolic rate results in food source shortage, sharp decrease in population, bottom up approach. भाई फूड लिमिटिंग तो हाई ट्रॉफिक लेवल का स्लोली लिमिटिंग होना नॉर्मल सी बात है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां अराउंड ध्यान दीजिएगा, अराउंड आईपीसीसी की एक एस्टिमेट थी, रिपोर्ट आई थी। डियर फ्रेंड्स, स्टेटमेंट वन बहुत डिफाइन नहीं है। अगर इसमें होता क्यूट, ध्यान सुनिएगा, अब मैं यहां पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एडिशन इन्फो पर फोकस कर रहा हूं। अगर यहां होता क्योटो रिकॉग्नाइज्ड, क्योटो रिकॉग्नाइज ग्रीन हाउस गैसेस, अगर ये होता तो स्टेटमेंट वन गलत होता। अगर ये होता तो, क्योटो मेंशन नहीं है तो स्टेटमेंट वन सही है। ध्यान सुनना, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों क्योटो रिकॉग्नाइज्ड है। लिसन वेरी केयरफुली। ओजोन, ओजोन विच इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर, ओजोन विच इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर, यहां देखिए, दिस ओजोन इज कॉल्ड नेगेटिव, दिस ओजोन इज कॉल्ड बैड, this ozone is called toxic, this ozone is called low ozone। क्लियर है? दिस इज कंपोनेंट ऑफ, अभी आगे यूज करेंगे, ध्यान सुनिए आज ही, फोटोकेमिकल स्मॉग। दिस इज कंपोनेंट ऑफ लॉस एंजलस टाइप ऑफ स्मॉग, दिस इज कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग एंड इट इज हार्मफुल, इट इज ग्रीन house gas, localized in distribution, it is harmful, it causes photo oxidation of chlorophyll, damage to chlorophyll, so statement 1 is correct। so my dear friends, आगे और समझेंगे। एक आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का एस्टिमेट था, if all greenhouse gases are taken out from the lower atmosphere, temperature of earth's surface and lower atmosphere will drop to -15 to -20 degrees Celsius depending upon localized concentration of greenhouse gases। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का एक अनुमान था कि अगर निचले वायुमंडल के सारे हरित गैसों को बाहर निकाल दें तो उनके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर विल ड्रॉप टू -10 to -15 to -20 डिग्री। सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। सी बोथ 1 and 2 आपके लिए राइट आंसर है। डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान सुनना, डिस्कशन में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सो ग्रीन हाउस गैसेस वो है, ऑल ऑफ यू नो एज वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर सेशंस, जो नए हैं उनके लिए greenhouse gases are transparent for incoming solar radiation। सन से आने वाली रेज को वो अलाउ करेंगी, they are transparent, but when these rays are coming back from the earth surface they will absorb them। so take statement 1 is correct। और greenhouse gas आप देख पा रहे हो, HFCs, CFCs, ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन, ब्लैक कार्बन ब्राउन कार्बन ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। क्लियर? सो लिसन वेरी केयरफुली, एंड
वी आर नाउ गोइंग थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 3-4 लाइंस बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू कैप्रिकॉर्न, water vapor most important natural greenhouse gas not recognized by Kyoto. Second, for tropical region methane is most important greenhouse gas recognized by Kyoto. तीसरा, globally CO2 is most important greenhouse gas because of maximum concentration. ठीक, with ozone present in troposphere not found in the form of layer as a component of PCS smog, oxidizing smog is greenhouse gas. आगे और बात करेंगे। सो आपको ये ग्रीन हाउसेस दिख रही हैं। हाउ मेंटेनेंस ऑफ हैबिटेबल टेम्परेचर, स्टेटमेंट 2 की बात हो चुकी थी। चलिए, so short waves the GSGs are transparent, they absorb the long waves emitted by the earth surface. So short waves को allow करेंगी, long waves को absorb करेंगी। Difference topic is very important. Come on the next question. अभी मैंने आपको स्मॉग समझाया था, कहा था ध्यान से सुनना। Ozone is the primary component of the photochemical smog. Okay, let's see. Heavy traffic, low temperature, and breeze are the early condition for formation of smog. It is common in both urban and rural areas. हम smog को fog, FOG, fog से confuse नहीं करेंगे। ठीक, my friends, have a look here. Be ultra attentive. Ozone is a component of PCS. Yes, statement is correct. अभी लिख दूंगा। Heavy traffic, photochemical, that means high light, high temperature. ठीक है। Breeze, no, stagnant air, मूव करेगी, विंड मोशन में होगी तो स्मॉग फॉर्मेशन नहीं होगी। ध्यान सुनना, लो टेम्परेचर पे क्लास, ध्यान सुनना, बी अल्टरनेटिव, लंडन टाइप ऑफ स्मॉग, रिड्यूसिंग टाइप ऑफ स्मॉग, ध्यान सुनना बिल्कुल, लंडन टाइप ऑफ स्मॉग, रिड्यूसिंग टाइप ऑफ स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग 1950-52 लंदन, कोल के जलने से विंटर्स में अर्ली मॉर्निंग आवर में रिपोर्ट हुआ। तो लो टेम्परेचर में क्या पॉसिबल है, रिड्यूसिंग लंदन और क्लासिकल स्मॉग। लेकिन वहां पे, अगर वहां पे भी जाए हम तो ब्रीज नो, सो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। यहां पे फॉग हो, स्मॉग नहीं, क्योंकि स्मॉग इक्वल्स टू स्मोक प्लस फॉग। दिस वर्क्स का पीछे बताऊंगा आपको ऑन द नेक्स्ट पीपीटी, सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। So D1 only is the right answer. आइए और डिटेल में देखते हैं। Smog, photochemical smog is created when sunlight reacts with certain airborne pollutants. कौन कौन से इसके कंपोनेंट, volatile organic compounds, particulate matter, NOx, SOx, more and more in the classical smog. ठीक, सो हाईलाइट फोटोकेमिकल रिएक्शंस, क्या बनेगा, NOx, फोटोकेमिकल स्मॉग का कंपोनेंट, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन, एल्डिहाइड्स, PAN पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट एंड सो ऑन। जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म। ठीक, स्मॉग वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डेस्वर्क्स, combination of two terms smoke and fog. So statement 1 is correct.
Photochemical smog is produced when sunlight reacts with the nitrogen oxides and at least one volatile organic compound in the atmosphere. Nitrogen oxides comes from vehicles, traffic, car exhaust, coal power plants and factory emissions. And VOCs कहाँ से? Gasoline, paint and many cleaning solvents. और इनका रिएक्शन कितनी बार आप देखोगे आजकल तो कई शहरों में गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, लंबा ट्रैफिक जाम है ना, इंटेंस सनलाइट है, व्हीकल्स का एमिशन है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है, पैन की फॉर्मेशन पर ऑक्सीबेंजोइल नाइट्रेट की फॉर्मेशन, आंखों में जलन, पैन कॉजेस और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इस तरह की बेचैनी हो रही है। क्लियर? मोर व्हीकल्स, VOCs containing products, volatile organic carbons, ground level ozone is tropospheric ozone. तो सनलाइट इनसे रिएक्ट करके ओजोन इज द प्राइमरी कंपोनेंट। द स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। स्मॉग रेफर्स टू हेजी एयर, ब्रीथिंग कंडीशन को डिफिकल्ट करना, है ना। यहाँ पे ब्रीज नहीं, यहाँ पे स्टेगनेंट एयर है। स्मॉग इज कॉमन इन बिग सिटीज विद लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रैफिक। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, हमारा दिल्ली भी कम नहीं है ना। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एसिड रेन pH लेस देन 5.6, ठीक है गाइस। हिस्ट्री का मोस्ट एसिडिक 2.4 pH, यूएस अर्ली 80s, वेस्ट वर्जीनिया नियर बाय व्हीलिंग आइलैंड्स, माय गॉड। इट इज बेनिफिशियल फॉर वाटर बॉडीज एज इट इंक्रीजेस द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। कैसी बात कर रहे हो, हाउ बेनिफिशियल? ऑलवेज अकर्स इन द वेट फॉर्म, नो, ड्राई फॉर्म का इंपैक्ट ज्यादा है। एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी बहुत अच्छे से पॉल्यूशन के चैप्टर में समझाया हुआ है, ठीक है। सो 2 इज नॉट करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट, A1 ओनली इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 is correct, 3 is not correct, but obvious 2 is also not correct. Acid rain or acid deposition is a broad term. Any form of precipitation with acidic component pH less than 5.6, sulfuric acid, nitric acid, है ना। This can also include wet form or dry form, rain, snow, fog, hail, even dust, forest के ऊपर। The statement 2 is not correct, but obvious it will increase acidity. तो ऑलवेज ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को डैमेज पहुंचाएगा, हार्मफुल टू द फिशेस, एल्गीज, एक्वेटिक लाइफ। एसिड रेन में देख पा रहे हो, ड्राई डिपोजिशन इज आल्सो देयर व्हेन रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड भी इसका कंपोनेंट है, ठीक। चलिए, ये आप देख पा रहे हो, हाउ ड्राई फॉर्म, हाउ दे रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Acid rain increases the quantity of friendly nutrients in the soil. Okay, ध्यान से देखना। Enhances the fungal disease in aquatic life and forest. Impact of acid rain is less on soil in India because Indian soils are mostly alkaline. देखते हैं क्या करते हो आप। So dear friends, how acid rain will increase the quantity of friendly nutrients? Statement 1 साफ समझ में आ रहा है, गलत है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एसिड रेन क्या कर रहा है भाई? एनहेंसेस द फंगल डिजीज
इन एक्वेटिक लाइफ इन फॉरेस्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब समझेंगे हाउ इट इज करेक्ट, विल डिस्कस। इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन इज लेस सॉइल ऑफ इंडिया, तुलना करो, करेक्ट, बी इज राइट आंसर। अभी करेंगे डिस्कस ऐसा कैसे हुआ। रेनफॉल दैट हैज बीन एसिडिफाइड, oxides of sulfur nitrogen reacts with moisture in the atmosphere, pH of less than 5.6। अब ध्यान से सुनना, exchange between hydrogen ion and nutrient cations potassium magnesium in the soil causes leaching of the nutrients, making the soil infertile। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ नहीं रहे, दिस इज इक्वल टू डिक्रीज इन रेस्पिरेशन ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, नुकसान पहुंचा रहा है। Impact of acid rain on the soil is less in India. Why? Because Indian soils are mostly alkaline. So with good buffering, tendency to get buffered. Statement 3 is correct. 2 is correct. बहुत ध्यान सुनना. Optimum pH for most bacteria and protozoa is nearly neutral. अच्छा. Most fungi prefers acidic environment. ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया प्रिफर्स एल्कलाइन एनवायरनमेंट। तो एसिडिक होगी तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ न के बराबर और फंगल ग्रोथ बढ़ेगी। जनरलाइज स्टेटमेंट है, बट दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ अराउंड 7 pH, फॉर एल्गी 7 point something, for fungi less than 7। So after long run of acid rain, what will happen? Microbial species in soil and water shift from bacteria to fungi bound and cause imbalance in the microflora। तो आप देख पा रहे हो कि भाई अगर न्यूट्रल है तो वहां पे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, एसिडिटी बढ़ी तो वहां पे फंगल, और अगर वो एल्कलाइन हुआ तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सो ऑन। तो हम समझ चुके। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। देख रहा कितने क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछ रही है। अब आपको समझ में आएगा कि मैं डिटेल में क्यों कराता हूं। अभी मैंने आपको बताया, तुरंत बताया था, बी अल्ट्रा अटेंटिव। Process by which radiation from planet's atmosphere warms the planet's surface to a temperature above what it would be without this। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कौन करता? सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Earth's natural gas effect is critical to supporting life. Initially was precursor to life moving out of the ocean on to the land। जाहिर सी बात है, अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, है ना, तो हैबिटेबल टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 99% of incoming is reflected into space by the atmosphere and cloud। नो, गलत है। तो हीट बजट हमने पढ़ा है, 1 and 2 is correct। So out of this C is the right answer, 1 and 2। आइए इसको और डिटेल में देखते हैं। The statement 1 is correct। So process greenhouse effect is a process by which radiation from planet's atmosphere warms the planet's surface to temperature above what it would be without this atmosphere। Radiatively active gas, greenhouse gas, क्या करे भाई? Radiate energy in all directions। The statement 2 is correct। Earth's natural greenhouse effect is critical to supporting life and initially was precursor to life moving out of the ocean onto the land। जाहिर सी बात है। ठीक, ये देखो आप, शॉर्ट वेव्स ट्रांसपेरेंट है, एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट इनको एब्जॉर्ब कर रही हैं और हैबिटेबल कंडीशंस को मेंटेन कर रही हैं।
एटमॉस्फेयर ही सरफेस और नियर बाय लोअर एटमॉस्फेयर को ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब करके कंडीशंस को मेंटेन कर रही है। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, ध्यान से सुनिएगा। कैसे? अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ यूवी visible and near infrared. 26% of incoming radiation is reflected into the space. देख, हमने बहुत अच्छे से 99% नहीं है, ठीक है, एंड आप देख पा रहे हो एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड 19% is absorbed by the atmosphere and cloud. Most of remaining is absorbed at the surface of earth. जो हम इस तरह इनके बारे में समझ पा रहे थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम मंडे टू सैटरडे रोज करेंगे 8 PM। ठीक, आप सेशन को अटेंड करेंगे। डिटेल में हो रहा है, लेंथी हो रहा है। आमतौर पे लोग ऑनलाइन में शॉर्टकट प्रेफर करते हैं, लेकिन आप जानते हो कि इस यूपीएससी के मैराथन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक, आज आपको इतने पर छोड़ रहा हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर 8 बजे। तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।